if I will go for ACCA students, for ACCA students, the past term papers, this is the PDF link, this is the past term papers. खुल जा यार, खुल रहा है, ठीक है. Here all the past term SBL exams, past term papers all are there. ठीक है, आप इसमें बैक जाते हो नहीं, दिस तो आई हैव ओपन्ड नाउ ओनली, इसमें बैक नहीं जा सकते. एक और लिंक मैं खोल रहा हूं, 1 सेकेंड. द अनदर लिंक फॉर ACCA स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट, इफ यू वांट टू गिव मॉक टेस्ट ऑन द इंस्टीट्यूट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, तो ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का लिंक है, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म लिंक, ये ठीक से वर्क कर रहा है. यू नीड टू रिकॉग्नाइज दिस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखना पड़ेगा. ठीक है, अभी हम लोग यहां पर नहीं कर रहे हैं. मैं मान लीजिए ACCAglobal.com में जाता हूं. ACCAglobal.com स्टूडेंट्स, अंडर स्टूडेंट्स स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस, अंडर स्टडी सपोर्ट रिसोर्सेस ACCA क्वालिफिकेशन, स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर केस स्टडी, अंडर स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर केस स्टडी CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, अंडर CBE प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म login. For login you need to use your ID password because that is not available to other than I am using any one student ID and password. कोई भी एक स्टूडेंट का ID पासवर्ड में यूज करना हूं. Now in this you will go here strategic business leader, strategic business leader official resources. Past exam there are 1 2 3 4 exams. Practice exam there is 1 2 3 exams. Specimen exams there is 1 2 3. So 4 plus 3 plus 3 10 एग्जाम्स वो लोग आपको करने दे रहे हैं. मान लीजिए मैंने ये असाइन किया तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में SBL स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर स्पेसिमेन 1 रिज्यूम स्टार्ट. द सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स. The software is giving you the entire question paper, overview, background, transcript, exhibits and all that. Then the software is giving you all the task 1A, B, 1C, 1D, 2A, 2B, 3. And then they are giving writing answers, Word file, spreadsheets. If there are any calculations involved, calculations are very less. Slides, अगर आपको PowerPoint slides में आंसर देना है तो PowerPoint slides. It is slightly reload करना होगा because it is not giving me. ठीक है, I mean to say that the entire question paper, the task and the response. So we need to read the entire paper by clicking each every window. आपको पूरा पेपर को रीड करना है. It will open. Just give me some time. Yes. आप इसको increase, decrease वगैरह कर सकते हैं. You can increase the size, decrease the size. You can increase this also. नहीं बढ़ रहा है ये अभी. There may be some issue, but आप इसको ऊपर नीचे जैसे नॉर्मली होता है, नॉर्मली. Again I need to reload. But these papers we can solve when we complete around entire syllabus. So my target is to complete the entire syllabus discussion. I will say that by end of October. Not sorry. By end of October. So that November में we can full focus on pure proper type of papers. September, October 2 महीना में हम लोग को ये सब सारा सिलेबस मोटा मोटी कंप्लीट करना है. Discussion so that we can give the exam mock papers in entire November month. ACCA student will give exam in December. CMA student will give exam in around November 25th around. तो ये सारा चीज हम लोग तभी कर पाएंगे when we complete. ACCA exam will be a 4 hours exam because they are not giving you pre-seen material. They are saying that you read these whole things which is around 15 pages right up. मैं अगर एक प्रीवियस टर्म का पेपर खोलूं, 1 सेकेंड. सपोज दिस इज सितंबर क्वेश्चन पेपर.
PDF paper I am opening just for better understanding. PDF paper. They are saying strategic business leader December 2021 exam, what you can do, you can't do, that they are writing. अभी ये मटेरियल यहां से चालू हुआ है. Exhibit 1, Exhibit 2, Exhibit 3, Exhibit 4, Exhibit 5, Exhibit 6, Exhibit 7, Exhibit 7 ही चल रहा है, 8. ये सारा उनका पूरा का पूरा पेपर है और उसके ऊपर ये क्वेश्चंस आए हैं. क्वेश्चंस वैसे ही है जैसे सीमा में है, कोई अंतर नहीं. और आपको पूरा इन सीमा देयर इज वन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, 1 आवर 1 क्वेश्चन फिनिश. बट यहां पर आपको पूरा पेपर पूरा 4 आवर्स करने मिल रहा है. आप समझो कि 4 आवर में आप एक एक क्वेश्चन का टाइम तो फिक्स करके ही आंसर करोगे ना. यू विल नेवर गेट टाइम टू गो बैक टू दैट क्वेश्चन. जनरली एग्जाम में टाइम नहीं मिलता. वी जनरली मेक अ थंब रूल इन ACCA जनरली कि आउट ऑफ 4 आवर 1 आवर विल बी रीडिंग प्लानिंग एंड 3 आवर विल बी राइटिंग द आंसर. सो 1 आवर रीडिंग प्लानिंग मतलब जब आपको पेपर मिला आप 30 to 40 मिनट्स पूरा एग्जिबिट वगैरह एक बार रीड कर लीजिए. देन यू आर लेफ्ट विथ 3 आवर्स 20 मिनट्स. अब आपने एक फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा. जब आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको फिर से एक बार एग्जिबिट को कोरिलेट करना पड़ेगा कि विच आंसर यू नीड टू राइट, हाउ यू विल बी यूजिंग द डेटा. यू नीड टू डू दैट. तो आपका फिर से 5-7 मिनट जाएगा. फिर उसके बाद आप आंसर लिखने जाओगे. फिर दूसरा क्वेश्चन में फिर से टाइम जाएगा. सो आई मीन टू से दैट जब यहां पर देयर आर सो मेनी क्वेश्चन 1A 1B 1C, आप 1A क्वेश्चन देखते हो विच इज ऑफ, उसके भी अंदर रोमन 1 रोमन 2 अलग अलग पार्ट्स है. यू अंडरस्टैंड. सो व्हेन यू राइट द आंसर फॉर दिस वेदर विच एग्जिबिट इज रिलेटेड, ये कैसे ध्यान रहेगा. एक बार फिर से एग्जिबिट में जाना होगा. हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको फिर से एग्जिबिट पढ़ना है. देन यू विल राइट द आंसर्स, देन यू विल टाइप योर आंसर. इफ सम कैलकुलेशन इन्वॉल्व यू गो इन एक्सेल. तो स्टूडेंट विल गेट अराउंड 3 आवर्स टू राइट. मे बी सम स्टूडेंट विल गेट 2 आवर 50 मिनट्स, 2 आवर 40 मिनट्स. 2 आवर 40 मिनट कम से कम मिलना चाहिए. 2 आवर 40 मिनट्स मीन्स 160 मिनट्स. फॉर राइटिंग 100 मार्क्स पेपर यू आर गेटिंग 160 मिनट्स. आप ध्यान देंगे इन ACCA दे आर सेइंग सेपरेटली प्रोफेशनल मार्क्स. ये प्रोफेशनल के लिए अलग से कुछ आंसर में नहीं लिखना है. Whatever you are writing, if that covers professionalism, then 4 marks freely given to you. उसके लिए there is no write up. So we say that actually 80 marks के लिए you are getting 160 minutes. So per marks you are getting 2 minutes. 15 marks you are writing time it's 30 minutes. आपको 30 मिनट में आंसर लिखना है. 30 मिनट में the length of the answer should be 45 lines. 1 minute should be 1.5 lines. यानी कि आपको ये आंसर 15 मार्क्स का 45 लाइन्स, 40 to 50 lines. आप बोलेंगे कैन आई राइट 60 lines? You can. But they are not seeing the quantity. They are concerned with the quality. What is asked in the question? Are you covering properly? Are you covering the professional skills? What is required? Are you using the scenario properly? Are you writing the answer relating to the question requirement? तभी नंबर मिलेगा. Otherwise नहीं मिलेगा. Which is actually a big practice. If we do the practice, then only we can manage this. नहीं तो नहीं मैनेज कर सकते. चाहे हम कितना बार भी कुछ भी पढ़ लें. और आंसर देख देख कर पढ़ने से बहुत इजी लगता है. When you read the question, you read the answer, you will think, what a lovely. But when you write, you find that you are not able to reproduce even 10%. तो आपको कैसे नंबर मिलेगा? You need to understand, you need to regularly practice. जो मेरा काम है आपको प्रैक्टिस करवाना, आपको टेंशन नहीं लेना है. But I mean to say that हर एग्जाम के लिए प्लानिंग होना पड़ेगा कि मेरा पेपर ऐसा है, मेरे को ऐसे करना है, ऑनलाइन है, अलग अलग फोल्डर खुलेंगे, देखना है, आंसर फोल्डर खोलना है, उसको खोल के आंसर राइट करना है, टास्क खोलना है. ये कैसे होगा? विदाउट प्रैक्टिस इट इज इम्पॉसिबल. बगैर प्रैक्टिस मेरे से भी संभव नहीं है. अगर मेरे को भी एग्जाम देना है तो इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे 2 एग्जाम कम से कम 4 घंटे में देना जरूरी है, कम से कम मिनिमम. Thinking that it is exam only, I need to work on the screen, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कॉपी पेस्ट करें, that is all I am not able to say now. But आप समझिए कि आपको ये करना जरूरी है. आप नहीं करते you can't pass. क्या रिदम होगा राइट करने का? बिकॉज इंग्लिश सबको आता है. कितना लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं,
whether I am liking your write up or not, how I will guide you that you improve like this. ये मेरे को आपको support करना होगा. Otherwise, how I will make you pass the exam? It is not in my hand that I will do this and I will help you to pass the exam. मेरे हाथ में है ही नहीं भाई. ये इंस्टीट्यूट का पास परसेंटेज है. Last 5 terms, we can say 50%. That means in ACCA the pass percentage is 50%. 50% स्टूडेंट लोग पास कर रहे हैं, which is a good amount, not bad. स्टूडेंट जनरली स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर की स्टडी में फेल नहीं होता है. नॉर्मली दे फेल इन ऑप्शनल पेपर, एपीएम, एएफएम, एडवांस ऑडिटिंग, एडवांस टैक्सेशन, जो भी 2 है. बट दे डोंट फेल इन एसबीएल एंड एसबीआर जनरली. इफ दे हैव पुट एफर्ट्स प्रॉपरली इन द राइट डायरेक्शन, दे विल पास. सीमा का भी रिजल्ट अगर आप देखेंगे, मैं नहीं जा रहा हूं बहुत जगह अंदर, उसका भी रिजल्ट अराउंड 40 to 50% है. बट मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं कि एसबीएल स्टूडेंट, नेवर आई रिसीव्ड कंप्लेंट फ्रॉम एसीसीए इंस्टीट्यूट दैट सराफ सर योर रिजल्ट इज बैड. ऑलवेज माई रिजल्ट इज ओवर पावरिंग द इंस्टीट्यूट रिजल्ट एवरेज पास परसेंटेज विच इज अराउंड 50. आई ऑलवेज गिव रिजल्ट इन एसबीएल जनरली because they consider the entire year performance, all 4 terms. अगर पूरे 4 टर्म में मान लीजिए 20 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, से एग्जाम्पल 20 में 15 से ज्यादा लोग हर साल पास होते हैं एसबीएल के अंदर. सिमिलरली सीमा, बिकॉज ऑल डिटेल आई नीड टू शेयर विद देम, देन ओनली आई कैन पब्लिसाइज. इन सीमा इफ देयर आर 20 स्टूडेंट गिविंग एग्जाम, 15 से ज्यादा स्टूडेंट हर बार पास होते हैं. यानी कि इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, बट दोज हु आर गिविंग एफर्ट्स, they are getting the result. Those who will not put efforts, they will not get the result. It's a simple matter. Writing speed matter in the sense, I will say, ऐसा नहीं है कि हम लोग को देखे बगैर I should be able to type something without looking at the keyboard. If you look at the keyboard, then you type, then also you will be able to type 1.5 line. Because they are not saying you are a typist. Understand? They are saying that you are a strategic thinking person. तो आपको वैसा नॉलेज बताना है अपने आंसर में जिसका क्वालिटी हो. अब बहुत छोटा लिखेंगे 15 मार्क्स आंसर, यू आर राइटिंग 20 लाइन्स, वी कांट पास, वी विल फेल, बिकॉज वॉट एवर वी नीड टू राइट वी हैव नॉट रिटन प्रॉपरली. सो इफ द लेंथ ऑफ द आंसर इज वेरी शॉर्ट, वी कांट पास. वी नीड टू गिव अ जस्टिफाइड आंसर. सो स्पीड डजंट मैटर, बट इफ वी प्रैक्टिस रेगुलरली द वे द एग्जाम विल बी देयर, तो स्पीड अपने आप आ जाएगा. जैसे आप प्रतीक जी, अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर स्पीड, तो ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग का हैबिट नहीं है ना. आप जहां पर काम कर रहे हो, देयर यू आर वर्किंग ऑन स्क्रीन, मान लीजिए अपना बिजनेस कर रहे हो, लेकिन एग्जाम आपने पेन एंड पेपर बेस्ड ही दिया है, तो वो हैबिट नहीं है, उसको आज से चालू करना है. नोबडी शुड टेक एनी प्रिंट आउट ऑफ एनीथिंग, नोबडी शुड राइट एनीथिंग ऑन अ कॉपी पेन बेसिस. हर चीज आपको स्क्रीन पे पढ़ना है, लिखना है, राइट करना है, अपने आप हैबिट आ जाएगा. आप मेरे से ज्यादा स्पीड ले आओगे यार. ओके, सो दैट यू कैन सी अ बेसिक नॉलेज रिलेटिंग टू both the exams, pass percentage, paper pattern, where you can go, how you will be dealing with that. आपको वो डील करने के लिए क्या करना होएगा.